मैंने अंबानी, टाटा, बिरला, शोभा डे सबको मैंने खत लिखे, ऐश्वर्या राय तक को खत लिखा कि मुझे आपके घर में 30 सेकंड के लिए बाई बना दो, क्योंकि आपके घर ओपरा आ रही है, मुझे सिर्फ उसको एक पानी का ग्लास देना है, उसके पैर छूने में निकल जाऊंगी। 24th of March 2012, same year, I was on her show. 4 मिनट मेरी टोटल शो पे बात हुई, ओपरा विनफ्री के साथ बात हुई 1 मिनट। मैंने अपने चार्ट पे लिखा था, ओपरा, I have waited 10 years for 1 minute of your time. When you sit in a high vibration frequency, you attract miracles. Meet Kavyal Sadani, therapist, healer, and spiritual teacher. A woman who healed her own shame, faced her ego, and now guides others through trauma, boundaries, past lives, and the art of asking for more. एक magician होता है ना, वो एक phrase use करता है, abracadabra. Abracadabra को translate करो तो उसका मतलब है I create as I speak. और मैंने आज तक जो बोला है वो सब ऐसे ही क्रिएट हुआ है। आई एम द सेम हसलर लाइक एवरीबडी एल्स, बस लोग बोलते नेगेटिव हैं और क्रिएट भी नेगेटिव करते हैं। One of the issues that people often talk about is this mental wellness, mental health. मेंटल हेल्थ की तकलीफ टुडे हैज बिकम लाइक कॉमन कोल्ड। लोगों को डिप्रेशन से ज्यादा एंजाइटी से ज्यादा इम्पेशेंस से ज्यादा। It was 2012, if my memory serves me. Yes. January of 2012. Yes. That was Oprah's maiden trip to India. That's right. And there I saw you. And there you were holding that plaque saying, Oprah, I want to meet you. That card said, Oprah, I have waited 10 years for 1 minute of your time. You know what? Now I should be holding that. I waited for 13 years to have you on my show. It's amazing, right? And I remember both of us. Oprah enthusiasts, powerful manifestors. आपने अलग तरीके से manifest किया उसे, मैंने अलग तरीके से manifest किया, and that's how we became friends. Yes. And I remember our conversation जब मैंने कहा, you know what, I want to do something similar what Oprah does. And if you ask me, Kavya, if there's one thing that I've always wanted to do, is these conversations. Me too. I mean, there's something so magical. और तब मैंने तुम्हें कहा था, you know what, एक दिन you'll be on my show. And here you are. Here I am. Thank you for having me. Thank you, my friend. Thank you. It has been an absolute pleasure and a joy knowing you. It has been a journey. It has been a journey. And all those coffee conversations that we have had in Mumbai have been a stepping stone for both of us, I can say. Absolutely. Right? And it has been such a delight seeing you taking one step at a time. And now you are one of the most celebrated therapists, spiritual healer that you are. That manifestations do come true. हर सपना सच होता है ना? और लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो उनके दिमाग से थॉट निकलता है, जो उनके मुंह से बात निकलती है, जो एक फीलिंग दिल से निकलती है ना कि काश मैं भी ये कर पाऊँ, बस एक बार कोई ना कोई सुन रहा है, हाँ, एंड इट्स ऑलरेडी पुटिंग दैट प्लान इनटू एक्शन। जब मैं ओपरा को मिली थी, उसको मिलने के 10 साल पहले से मैं उसे मैनिफेस्ट कर रही थी, सिंस 2002। और मेरे पास एक फोटोग्राफ मैंने बनाई थी फोटोशॉप पे, मेरी और ओपरा की, जैसे हम लोगों ने सेल्फी खींची हो। एंड आई सेड आई वांट अ पिक्चर विथ हर। मुझे बस उसके साथ एक फोटोग्राफ चाहिए, मुझे बस उस जगह पे खड़े रहना है जहाँ पे वो खड़ी है खुद, वो जो हवा ले रही है, आई वांट टू ब्रीथ द सेम एयर। और 2012 7 leading newspapers had my picture with Oprah Winfrey. And I'm telling God, ऐसी नहीं चाहिए थी मुझे फोटो. I wanted a proper picture with her. And you did not even stop there. तुम रुकी नहीं ना? You further moved on and you were on Oprah's show as well. Tell me about that. You got that photograph with Oprah in one common screen. मैं आपको शुरू से बताती हूँ, क्योंकि ये ओपरा की जो स्टोरी है वो बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन की स्टोरी है। When I was 20 तो मेरी शादी हो गई, और उसके पहले मैं थोड़ी सी पागल ही थी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, साइको लाइक आई यूज्ड टू कॉल माय सेल्फ।
तब मुझे सिटीज चेंज करने पड़े. बॉम्बे से मुझे बैंगलोर जाना पड़ा, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी मेंटली. आई वाज वेरी लोनली इन बैंगलोर. That was after your marriage. Immediately after my marriage. You got married at 20. I got married when I was 20. Wow. तो जब मैं बैंगलोर गई तो टीवी पे सारे कन्नड़ा के चैनल्स, ना कुछ हिंदी ना कुछ इंग्लिश, स्टार वर्ल्ड आता था. और स्टार वर्ल्ड में सिर्फ ओपरा विनफ्री का रन री रन. दैट वाज द ओनली थिंग आई वॉच्ड द होल टाइम. अब मेरा दिमाग ऐसे वायर्ड हो गया था ना कि अगर मेरा दिन खराब जा रहा है तो भी मेरे को सपने में ओपरा विनफ्री आ रही है. मेरा दिन ठीक है तो टीवी पे ओपरा विनफ्री आ रही है. तो कहीं पे अनकॉन्शियसली मैंने उसे मेरी गुरु बना लिया था. और अगर आपने कभी ओपरा का शो देखा है तो आपको पता चलेगा कि उसका जो पावर ऑफ कनेक्शन है लोगों के साथ वो इतना खूबसूरत है कि लोग बस उसके आसपास रहते हुए हंसते हैं, रोते हैं. उसे देख के उनको लगता है दैट वो उनकी माँ है, लाइक शी इज टेकिंग केयर ऑफ देम, शी विल टेक केयर ऑफ देम. और उस चीज को देख के मैं भी रोती थी. Somewhere that connection that she had back there with her people touched me. And I just kept feeling, यार कभी मैं उसी जगह पे अगर खड़ी हो सकूं जहाँ पे वो खड़ी है, अगर मैं कभी उसका एक शो अटेंड कर सकूं, अगर मुझे उसके साथ एक फोटोग्राफ मिल जाए तो इट विल बी अमेजिंग, इट विल बी सो गुड. और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था नया. तो मैं टेस्ट कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छोटी छोटी चीजें तो मिल रही थी मुझे. एक पर्स मैंने विजुलाइज किया, मिल गया. कुछ पैसे विजुलाइज करे, मिल गए. लेकिन तब मुझे लग रहा था कि चलो ये छोटी चीजों पे तो काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा इम्पॉसिबल सा सपना कोई देखूं और अगर वो सच हो जाए, वो चलेगा क्या, वो काम करेगा क्या? तो आई विल से दैट दिस वर्क्स गारंटीड. और तब मैंने ओपरा विनफ्री से मिलने का सपना देखा 2002 में. 2012 में दिस ड्रीम केम ट्रू. और वो सपना इस तरीके से देखा था कि वो जो फोटोग्राफ बनाई थी मैंने, वो मेरे सामने रखी हुई थी 10 साल तक. ब्यूटीफुल. रोज सुबह उठ के मैं उसे देखती थी. आई वुड फील हैप्पी, आई वुड से थैंक यू फॉर दिस. 2012 में ओपरा जब इंडिया आई तब मैं पागल हो गई थी. That was her first trip to India. That was her first trip to India. And I'm not sure if she has visited again. उसके बाद वो वापस नहीं आई. लेकिन मैं तब बिल्कुल पागल हो गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ओपरा विनफ्री को मिलने जैसा इम्पॉसिबल सपना, if not now, when? अगर भगवान मेरे लिए पूरा कर रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आई ऑल्सो गेट अप एंड मेक श्योर दैट आई मीट दिस पर्सन. अब भगवान ने उसे यूएस से इंडिया तो भेज दिया. और इंडिया में मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे भेजा हुआ है. 15 मिनट की दूरी पे, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय को मिलने आ रही थी. ऐश्वर्या राय की बेटी पैदा हुई थी और मैं उनको वहाँ नहीं मिल पाई. फिर वो ताज में रुकी थी, मैं उनको ताज में नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ पे मैनेजर ने मुझे धक्का मार के निकाल दिया, सेइंग यू आर अ सिक्योरिटी थ्रेट, गेट आउट. आप बहुत घंटों से यहाँ वेट कर रही है. तो मैं वहाँ उन्हें नहीं मिल पाई. और तब मैं कुछ कमाती नहीं थी. आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ, होम मेकर, टेकिंग केयर ऑफ 2 चिल्ड्रन. तो अगर मुझे कुछ would love to double click on when you're saying that I was just a housewife, right? I'll come back to that, but please go ahead. कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, सेल्फ एस्टीम बहुत लो थी. तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी किसी से पूछने की कि मैं जयपुर जाऊं, मुझे प्लीज जाना है, जाने दो. ऐसा लगता था कि कोई क्यों मेरी एक्सपेक्टेशन को समझेगा. तो बहुत डरते हुए मैंने सबको पूछा कि मुझे प्लीज जाने दो. अब मैं किसी को क्या बताऊं कि ये ओपरा का सपना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग ओपरा. लेकिन ये बात थी कि अगर ओपरा को मैंने मिल गया, so everything is possible. My life will change. You knew it deep down. My life would change if I met Oprah Winfrey. I just love the stare that you have right now. Because it means that everything is possible. I'm getting goosebumps, by the way, as if I'm back there in the same place with you. Yes. अभी भी ऐसे ही लगता है कि कल की बात है. और गौरव, उस दिन के बाद मेरी लाइफ कभी भी सेम नहीं रही. Everything changed. You were there. You witnessed it. The miracle of it.
कि मैं बहुत शाई सी लड़की थी तब, डोंट टेल मी। बहुत इंट्रोवर्ट। वहां पे तो कम से कम नहीं थी तो। क्योंकि उस दिन कुछ हुआ था। हाँ। मैं कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में, मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने आप से कभी भी कुछ भी कर पाऊंगी। आई वॉज डिपेंडेंट। तो मैं आई केम विथ माई मदर, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और उसने मुझे देख लिया कि इतनी पागलपंती कर सकती है, इतने चिल्ला सकती है, तो मुझे छोड़ देगा। अभी तो शादी हुई है। तो मैं उसे नहीं लेके गई कि नहीं भाई तू रहने दे, मेरी माँ तो मुझे डिसोन नहीं कर सकती, तो उसको लेके जाती हूँ साथ। अब मैंने बहुत फ़ोन कॉल्स लगाए, जितने मेरे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स थे, जितने मेरे इन्फ्लुएंशियल फैमिली वाले थे। कोई भी कहीं से भी जान पहचान अगर निकल जाती कि भैया प्लीज़ प्लीज़ मुझे ओपरा से मिला दो, ओपरा से मिला दो, एक बार ओपरा से मिला दो। मैंने अंबानी, टाटा, बिरला, शोभा डे, जितने मुझे इन्फ्लुएंसर्स तब के मिले, तब सबको मैंने खत लिखे। ऐश्वर्या राय तक को खत लिखा कि मुझे आपके घर में 30 सेकंड के लिए बाई बना दो, क्योंकि आपके घर ओपरा आ रही है। मुझे सिर्फ उसको एक पानी का ग्लास देना है, उसके पैर छूने, मैं निकल जाऊंगी। इतनी हद तक। And what you're saying is not metaphorical. In true sense, you wrote that. I have written all these letters, and I didn't know any of these people, but I have written letters to all of them कि ये सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है, और अगर आप इसको पूरा करने में मेरी मदद कर सकें तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। But of course, who was going to respond to that? कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे लगा कि भगवान ने उसे यूएस से यहाँ तक भेज दिया, अब तो घर से वहां तक नहीं जा सकती। बॉम्बे से तो वो निकल गई, फिर जयपुर में मिलने वाली थी। बहुत मिन्नतें करके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जनवरी 2012 मैं पहुंच गई मेरी मम्मी के साथ, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना पूरा हो सकता है। तो मैं 2 दिन जल्दी पहुंची और मैं वहाँ पे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो ग्राउंड है वहाँ पे चक्कर लगाती रही, रेकी लगाती रही, रेकी लगाती रही, रोती रही। इतना रो रही थी मैं 2 दिन कि सब लोग जो मीडिया वाले थे वो भी मेरे को देख के पूछते हैं कि अरे आप 2 दिन से आ रहे हो, आप रो क्यों रहे, आपको कुछ खो गया क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ मिलने वाला है। कुछ मिलने वाला है। अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे सबसे कीमती चीज यहाँ मिलने वाली है। तो मैं वो टिकट देख रही हूँ, हॉल का नंबर देख रही हूँ कि पक्का आ ही जाएगी ना, आ ही जाएगी ना, पिंचिंग सेल्फ ऑल द टाइम। और जब वहाँ पे जो मीडिया वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना थोड़ी सी ऐसी पागल वाली सी फैन लगती है, आपका इंटरव्यू तो लेना बनता है। तो इवेंट खत्म होने दो, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, ऐसे पहले इवेंट खत्म होने दो, बाद में जो करना है। अब मैं वहाँ पे एक पोस्टर लेके खड़ी थी मेरे और ओपरा के फोटोग्राफ के साथ, दैट ओपरा आई हैव वेटेड 10 years फॉर 1 minute ऑफ योर टाइम। और वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, चिल्ला रही हूँ, मैं रो रही हूँ। और तब एक ऐसा मैजिकल मोमेंट आया कि मैं चेयर पे खड़ी हो गई। और जो वहाँ पे होस्ट थे उन्होंने बोला प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ओपरा विनफ्री। सब लोग ताली बजा रहे हैं, किच 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 किच, फोटो की आवाजें आ रही हैं, सीटियाँ बज रही हैं। और बरखा दत्त वाज देयर। और वहाँ पे मैं जोर से चिल्ला रही हूँ ओपरा ओपरा, जोर से चिल्ला रही हूँ। और तब मेरी मम्मी ऐसा मेरा जैकेट खींच के मुझे बोलती है कि बेसी जा, हजी नथी आई हुई, गुजराती में इसका मतलब बैठ जा, अब तक वो आई नहीं है। ऐसे आई नहीं है मतलब, तो ये तालियां वालियां, ये सीटियां, ये किसके लिए बज रही हैं? वो सब मेरे लिए बज रही थी। क्योंकि शायद मेरे जैसा कोई पागल था नहीं। अदर पीपल ओवर देयर वर मोर सोफिस्टिकेटेड, और मैं वहां पे खड़ी हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कि वो स्टेज पे नहीं आई है अभी तक। उस एक मोमेंट में काव्या तुझे दिख रहा था एंड नोबडी एल्स कुड सी हर। इफ यू से इट लाइक दैट, लेकिन उस मोमेंट में somehow all the cameras were on me. I didn't know it. This was a manifestation. जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तब तक मुझे याद नहीं कि उसने क्या कहा। I don't remember anything of the interview. मुझे एक किस्सा याद है कि बरखा दत्त ने उससे पूछा कि what brings you to India? और ओपरा ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं अपना खुद का विजन चार्ट बना रही थी और उसमें बुक में आया गो टू इंडिया 2 बार आया, मैं इग्नोर नहीं कर पाई। आई बिलीव इन साइंस
एंड आई एम हियर, और मैं वहाँ से चिल्ला रही हूँ आई कॉल्ड यू, क्योंकि ये मेरा विजन चार्ट था. तो शी स्माइल्ड एट मी एंड शी सेड यू गॉट इट. और मैं फिर से रोए जा रही हूँ. और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, इंक्लूडिंग यू, somehow everybody was cheering for me, क्योंकि शायद उस वक्त उन सबको पता चल गया था कि ये मेरे लिए कितना महत्व वाला इवेंट हो रहा है. Like some magic was happening for me at that time. The universe conspired it for you. The universe conspired it for me. लेकिन मैं फिर भी मैं उसे गले नहीं लगा पाई. मैं उससे हैंडशेक नहीं कर पाई. मैं उसके साथ एक पर्सनल फोटोग्राफ नहीं ले पाई. Next day, you got a call. I got multiple calls from everywhere saying congratulations. And I'm like, क्या congratulations? मेरा तो मूड इतना खराब था, मैं तो उसे मिल ही नहीं पाई. तो इसी अरे न्यूज़पेपर्स नहीं देखे, जाके न्यूज़पेपर्स देखो. नीचे गई, न्यूज़पेपर्स मांगे, और होटल में जो बंदा था न्यूज़पेपर देने वाला, वो न्यूज़पेपर देख रहा है, वो मेरी शक्ल देख रहा है, न्यूज़पेपर देख रहा है, मेरी शक्ल देख रहा है. आपको कौन सा चाहिए, ऐसे कोई भी दे दे भाई. तो सारे न्यूज़पेपर्स पे 7 लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैड माय फोटोग्राफ विद ओपरा विनफ्री ऑन द फ्रंट पेज. और मैं ऊपर वाले को देख के बोल रही हूँ, भाई ऐसे नहीं मांगी थी फोटो. Did you clarify from God? But that's what. वो मेरा बहुत बड़ा लेसन था. क्लैरिटी, काव्यल, क्लैरिटी. तूने फोटो मांगी, तुझे 7 फोटो मिल गई. अब और क्लियरली मांग. उस दिन एक और चीज हुई which was miraculous. जब मैं ओपरा से नहीं मिल पाई, ओपरा जब वहाँ से चली गई, ओपरा जब जा रही थी ना वहाँ से, तो मैंने हाथ में ऐसे 500 के नोट रखे थे कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मुझे अगर रोकेगा तो उसके हाथ में मैं थमा दूंगी. हम लोग इंडिया में हम लोग ये सब करते हैं. अब सिक्योरिटी वाले ने पैसे तो ले लिए, लेकिन ओपरा के पास जाने नहीं दिया. तो मैं उसका जो सिक्योरिटी चेन था उसको तोड़ के जाने की ट्राई कर रही थी. और तब मुझे पड़ा पुलिस का डंडा ऑन माई राइट शोल्डर. वो मुझे अभी भी दुखता है विंटर्स में. जब मैंने जोर से आवाज दी, बिकॉज पुलिस का डंडा पड़ना कोई छोटी बात नहीं है, तब ओपरा ने मुड़ के देखा एंड शी डिड दिस. शी जस्ट डिड दिस एंड शी सेड जाओ, मतलब यू नो गो, दे आर हिटिंग यू. शी गिव मी अ ग्लैंस एंड शी लेफ्ट. और मैं वहां पे बैठ के रोई, छोटे बच्चे के जैसे. मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, रिफत भी काइंड ऑफ रोना. जब वो हुआ तो कुछ 2 फिरंग लोग आए मेरे पास, ऐसे पानी का ग्लास लेके कि क्या हो गया, आर यू ऑल राइट. और मैं रो रही हूँ, नहीं मुझे ओपरा से मिलना था, मैं उसके लिए इतने लेटर्स लाई हूँ, मैं उसके लिए इतने गिफ्ट्स लाई हूँ. तो वो लोग मुझे कंसोल कर रहे हैं दैट इट्स ओके, यू नो. लेकिन पूरी बात उन्होंने सुनी. ऐसे अच्छा अगर ओपरा होती तो तुम क्या मैसेज देती उसे. तो मैंने बोला उनसे, मैं उनको ये बोलती वो बोलती. एनीवेज दे लेफ्ट. कुछ वक्त बाद मुझे ओपरा विनफ्री की ऑफिस से एक फोन आता है, लगभग 15-20 दिन बाद. दैट हेलो, वी आर कॉलिंग फ्रॉम द ओपरा विनफ्री ऑफिस. Oprah wants you to be on her show. तो मैंने फोन उठाया, बात सुनी, और मैंने बोला भाग, और फोन रख दिया नीचे. It could be a prank call. 100%. I thought this is a prank call. रख दिया फोन. वापस फोन आया उसका. Don't hang up. We are calling from the Oprah Winfrey office. I said I don't believe you. Where did you get my number from? और फिर उन्होंने बताया कि उस दिन याद है जयपुर में जब तुम थी, वहाँ पे रो रही थी, वहाँ पे ये लोग आए थे. ऐसे हाँ, तुमको कैसे पता. शी सिंह हम लोग ही थे, हम लोग ओपरा विनफ्री की टीम से थे, और हम लोगों ने वो पूरा इवेंट रिकॉर्ड किया है एंड वी शोड इट टू ओपरा. एंड ओपरा सेड इस लड़की को मेरे शो पे लेके आओ. 24th of March 2012, same year. I was on her show. I remember you called me. I was on her show. And 4 मिनट मेरी टोटल शो पे बात हुई. ओपरा विनफ्री के साथ बात हुई 1 मिनट. 1 मिनट. सिंक्रोनिसिटी देखो गौरव. मैंने अपने चार्ट पे लिखा था, ओपरा आई हैव वेटेड 10 years for 1 minute of your time. And she gave you.
एंड आई गॉट 1 minute. The universe जब gifted it to you. मैंने 1 minute मांगा, तब मैं वापस भगवान को ऊपर देख के बोल रही हूँ, इतना ही मांगा मैंने 1 minute मांगा, तूने 1 minute दिया. सेकेंड लेसन फ्रॉम देयर, मैंने अपने दिमाग में अपनी एक औकात बांध ली कि तुझे इससे ज्यादा क्या मिलेगा. और जो औकात मैंने बांधी उसके हिसाब से आई रिसीव्ड. दैट टॉट मी, आस्क फॉर मोर एंड यू विल रिसीव इट. आस्क फॉर मोर एंड यू विल रिसीव इट. हम डरते हैं, मांगने से डरते हैं. हमें लगता है हम कौन होते हैं कि जिनको इतना रिसीव हो सकता है. जो भी हमारे मुंह से निकलता है, जो हमारे दिमाग से निकलता है, जो एक इच्छा दिल से निकलती है, कोई ना कोई उसे हमेशा सुनता है. हमेशा. एक मैजिशियन होता है ना गौरव, वो एक फ्रेज यूज करता है, एब्राकाडैब्रा. एब्राकाडैब्रा को ट्रांसलेट करो तो उसका मतलब है आई क्रिएट एज आई स्पीक. I create as I speak. मैं जैसे बोलती हूँ वैसे क्रिएट करती हूँ. और मैंने आज तक जो जो बोला है वो सब ऐसे ही क्रिएट हुआ है. और मैं कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्पेशल लकी नहीं हूँ. आई एम द सेम हसलर लाइक एवरीबडी एल्स. बस लोग बोलते नेगेटिव है और क्रिएट भी नेगेटिव करते हैं. और जैसे मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी, वैसे लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है कि क्या चाहिए. हाँ, ये पता है तकलीफ नहीं चाहिए, अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए वो पता है. बट यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट. ओपरा जब इंडिया आई, शी टुक अवे समथिंग फ्रॉम मी. उसने ना मुझसे मेरी शर्म छीन ली. एक जो एप्रीहेंशन होता है, एक डर होता है कि लोग हंसेंगे तुझ पे, लोग पागल बोलेंगे तुझे. मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी उसे मिलने के लिए कि मुझे लगा यार अगर शर्म में रह गई तो मेरी लाइफ चेंज नहीं होगी. ओपरा ने मेरी शर्म छीन ली. मेरे क्वालिफिकेशन से ज्यादा मेरी बेशर्मी मुझे काम आई है. What a beautiful sentence to make. मेरी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा मेरी बेशर्मी मुझे काम आई है. क्योंकि अब मुझे जो चाहिए ना, मैं बेशर्मी से मांग लेती हूँ. What are you focusing on now? What's next, Oprah, for you? To be a bigger conduit for change. कि मेरे लिए जो गुरु बने हैं वो मेरे सामने आए, या वो मुझे मिल जाएं, वो मुझे आगे का रास्ता दिखाएं. शायद इस पॉइंट पे मुझे भी नहीं पता कि मुझे और क्या चाहिए. मेरे हाथ से जितनी हीलिंग होनी थी लोगों की, वो हो रही है. मुझे उसे एक्सपैंड करना है. मुझे अब एनिमल्स को भी हील करना है और अपने आप को भी हील करना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट मी दैट आर वेरी लेस देन परफेक्ट. परफेक्शन तो खैर मैं देखती भी नहीं हूँ, बट सो मेनी थिंग्स अबाउट मी दैट आर डैमेज्ड, विच नीड रिपेयर. मैं उसे रिपेयर करना चाहती हूँ. What is damaged for you? इम्बैलेंस है गौरव. मैं एक तरफ आई बिलीव इन द पावर ऑफ वन सेल्फ. आई बिलीव इन बैलेंस. आई बिलीव इन बाउंड्रीज. You said you believe in the power of oneness. I believe in the power of everybody being one. Got it. I believe that The we power can of boundaries, all make you a said. difference. I believe that we have to have strong boundaries. But on the other hand, I can't lie about the fact कि मेरी personal boundaries थोड़ी weak हैं. जितना मैं दूसरे लोगों को दे पाती हूँ उतना अपने आप को नहीं दे पाती. जितना मैं दूसरों का ध्यान रख पाती हूँ उतना अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ. आई हैव थॉट अबाउट दिस बिफोर कि मैं क्यों इतना काम करती हूँ. इज इट कमिंग आउट ऑफ माई ईगो कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करने की ट्राई कर रही हूँ, और इज इट कमिंग आउट ऑफ अनदर टाइप ऑफ ईगो कि नहीं मैं सबकी मदद करूँगी. एम आई बीइंग अ पीपल प्लीजर? बट इट इज एक्चुअली नन ऑफ दैट. None of them. कुछ
कर्मा है जो मुझे वापस देना है अभी। मैंने ये पहले भी कहा है कुछ पॉडकास्ट में कि मेरे जो पास्ट लाइफ्स मैंने देखे हुए हैं उनमें से काफ़ी लाइफ टाइम्स ऐसे थे जहाँ पे मैंने लोगों को बहुत दुख पहुँचाया है। जब तक मैं उसे साफ नहीं करती तब तक शायद मैं इसे कर्टेल नहीं कर पाऊंगी। आई कीप आस्किंग फॉर स्ट्रेंथ कि जो चैलेंज भगवान ने मुझे दिया है दैट यू ओ इट टू दीज पीपल, वो चैलेंज जब तक मेरा पूरा ना हो जाए ना तब तक स्ट्रेंथ बनाए रहना। यू नो, सिंस यू स्पोक अबाउट, तुमने पास्ट रिग्रेशन की बात करी एंड आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू दैट, you just spoke about that. So what is one of those important lessons that you have picked up from there, apart from, as you said, कि जब तक मेरे कर्मा पूरे नहीं होंगे तब तक भगवान खाली स्ट्रेंथ बनाए रखना? बहुत सारे लेसन्स हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। एक ये चीज़ ज़रूर सीखी है कि जो हम कर्मा कहते हैं, कर्मा इज़ नॉट जस्ट हमने क्या किया, कर्मा इज़ आपने क्या किया, आपने रिएक्ट कैसे किया और आपका इंटेंशन क्या था। एक्शन, रिएक्शन एंड इंटेंशन दैट यू हैव टुवर्ड्स अदर पीपल। आई थिंक व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते ना, वो इंटेंशन नहीं समझ पाते, एंड दैट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर कर्मा। टेल अस मोर अबाउट दैट, बिकॉज मेरे को लगता है कि इंटेंशन में और मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। बिल्कुल। सो टेल अस अबाउट दैट। बिल्कुल। लोगों को लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है। मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ लाइफ वर्क्स। मुझे भी तो अभी थोड़ा सा समझ आने लगा है। इसके लिए तो मैं अपने आप को पहले साइको बोलती थी। साइको स्पिरिचुअल हीलर के पहले मैं अपने आप को सिर्फ साइको बोलती थी, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर ऑफ हाउ लाइफ वर्क्स। जब हम अनअवेयर होते हैं ना, जब हम अनअवेयर होते हैं तो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं। जब हम अनअवेयर होते हैं तब हम सेल्फिश होते हैं। ओके, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं। हमको लगता है कि बस हम अपने आप को सिक्योर कर लें पहले, हमारा देख ले पहले, बाकी के जाए भाड़ में, बाकी के जो कर रहे हैं हमको क्या लेना देना। कोविड ने हमको ये सिखाया कि भाई चाइना में कोई छींकता भी है ना तो तुम्हारे घर में किसी की जान जा सकती है। और नेचर ऑलवेज हैज इट्स वेज। जब तक हम सब ये वननेस नहीं सीखेंगे तब तक हमको लात पड़ती रहेगी। मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस ने मुझे ये सिखाया है कि भैया तुम्हें तो एक एक रुपया कमा के वापस दे के जाना है, जिसने तुमको जो भी दिया। एवरी ब्रेथ, हर सांस का हिसाब लिखा हुआ है कहीं पे। बहुत शाणे मत समझो अपने आप को वो स्मार्ट नहीं समझो अपने आप को, क्योंकि एक बाही खाता है जहाँ पे आपके हर पूरा चिट्ठा बैठा, पूरा तो जितना प्यार से आप इस जिंदगी को निभा सको, जितनी फॉरगिवनेस से, जितने एक्सेप्टेंस से, उतनी तुम्हारी जिंदगी इजी, सफल हो जाएगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने मुझे ये भी सिखाया है कि जिन लोगों को हम इस जन्म में हमारा दुश्मन मानते हैं वो लोग एक्चुअली हमें प्यार बहुत करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि ऑन द सोल वर्ल्ड वो वॉलंटियर करते हैं कि ठीक है भाई, ये जो रोल तूने मेरे लिए लिखा है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब मैं ये प्ले करूँगी ना तो तुझे बहुत दुखेगा। जब मेरे हाथ से वो थप्पड़ पड़ेगा, जब मेरे मुंह से वो गालियाँ निकलेंगी, जब वो रिजेक्शन महसूस होगा ना, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कैसे तुझे दुख पहुँचाऊँ? लेकिन हम ही उनको बोलते हैं कि नो नो नो, आई ट्रस्ट यू। मुझे रास्ते पे किसी और से गाली पड़ जाए उससे अच्छा तुझसे पड़ जाए। At least on the soul world, I'll be able to deal with it better. The people who have caused us the maximum pain are closest to us in the soul world. Okay? They are our dark gurus. वो हमको डार्कनेस के थ्रू सिखाते हैं कि ऐसे मत बनो, ये मत करो। एज अ स्पीशीज ना, एज अ ह्यूमन स्पीशीज, हम लोग कॉन्ट्रास्ट में सीखते हैं। एक अंधेरे रूम में ही आपको एक छोटी सी कैंडल का महत्व समझ में आता है, वरना 6 कैंडल जला लो पूरी लाइट के साथ, किसी का ध्यान नहीं जाएगा कि वो कैंडल क्या कर रही है। सेंसिटिविटी सीखने के लिए हमें इनसेंसिटिव लोगों की ज़रूरत होती है। कंपैशन सीखने के लिए हमें जो लोग हमें ट्रॉमा देके जाते हैं उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। शांति के लिए गुस्से की ज़रूरत होती है। तो जब वो हमें ये सारे नेगेटिव इमोशंस के थ्रू
पास कराते हैं ना, देन वी कैन डिसाइड भाई मुझे कौन सी वाली पर्सनालिटी बननी है, ये वाली या वो वाली. मैंने बहुत सारे पास्ट लाइफ में नेगेटिव पर्सनालिटी बन के देखा हुआ है. अब लगता है कि जैसे ह्यूमन रेल्म पे सब पैसा इकट्ठा करते हैं ना, मैं दुआ इकट्ठा करती हूँ. क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे माला माल नहीं होना भाई, मुझे ऊपर भी माला माल होना है. दैट्स व्हाई इन दिस लाइफ टाइम आई हैव चोजन सर्विस. जब मैं ईगो के स्टेट में बैठती थी कुछ 5-6 साल पहले, तब मैं बोलती थी मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ. फिर एक दिन मुझे मेरे एक गुरु ने सपने में बताया, हेल्प कर रही है मतलब तू उनसे सुपीरियर है. कोई सुपीरियर इंसान ही किसी इंफीरियर इंसान को हेल्प कर सकता है. तू कौन होती है सुपीरियर बनने वाली? That day I changed the definition. I said, I'm sorry. I'm serving. Because of my past life regressions, I have taught that my purpose this time is to serve people with love. That's what I do. Yeah. You know, everything that you're saying is landing so well for me. So well for me. In the morning, I was leading a program. And we were talking about that how the game that we are playing, it's not a time game, it's a vibration game. Yeah. And unless you're willing to let go of, unless you're willing to release the game which is not supporting you, which is very egoic in nature, you'll not be able to vibrate at a higher frequency. Bilkul. Right? And as Eckhart Tolle says, that every time when you are getting triggered, either by a person or a situation, rather than looking at the person and blaming the person and the situation, look at who is getting triggered. That's right. And also, the other day I was reading कि उसमें बहुत ही बढ़िया सी बात कही कि जब जब ज़िंदगी में तुम्हें तकलीफ़ें आती हैं, जब जब उन तकलीफ़ों का महत्व ये होता है कि तुम्हें एकदम सही रास्ते पे वापस लेके आ जाए. तो you have got two choices. Yes. Either follow the path that life has offered you, or continue to do the same thing. Yeah. And then you'll say, शख्स मैन, उसने मेरे साथ फिर से गलत कर दिया, उसने मेरे साथ फिर से गलत कर दिया, उसने मेरे साथ फिर से गलत कर दिया. So every time when I talk to people, I tell them that unless you're willing to sit in the heart of the emotion which is unprocessed for you, unless you're willing to take that center seat and be with the pain that you are experiencing, life will continue to give you similar situations. That's right. And वही होता है ना हमारे साथ, वही तो होता है. And I just loved it when you said कि यार कि सेंसिटिविटी समझने के लिए इनसेंसिटिव लोगों से मिलना ज़रूरी है, कंपैशन समझने के लिए ट्रॉमा से एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है. जी. And you know, जब काव्या, when you made that, I don't know if I should call it commitment, rather the better word is when you declared it for yourself कि यार enough, अभी मैंने ये who, as you said, who am I to help the other person. जी. जब वो गेम मैंने बंद करी और सर्विस वाली, जब तो आपने you started this game of servicing. So declaration के बाद वो अपने अंदर जो ट्रांजिशन लेके आना पड़ता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना पड़ता है, and then one day you transcend. That's right. वो process, if you can just take us through, what is it that you went through and how was it for you? This is like एक पुरानी स्किन को उतारना, खींच के उतारना, और उस पेन से कंफर्टेबल रहना इज नॉट इजी ना. मैंने एक कोट पढ़ा था जो मेरे दिमाग में रह गया. God puts you through the same situation again and again and again to check if you are still an asshole. और मैंने ये ईगो वाली गेम ना बहुत बार खेली है, बहुत जन्मों में खेली है, एक ही जन्म में 300 बार खेली है. I don't want to be an asshole to God now. जितना जल्दी हम समझ जाएं कि ईगो इज अ फॉल्स गॉड, वो आपको आपके प्लेजर स्टेट में रखता है, आपके स्टोरी में रखता है, लेकिन आप उस बबल से आगे नहीं बढ़ सकते. आप अटक के रह जाओगे. आप उस ईगो बबल को लेके अपनी मौत तक चल सकते हो. इट कैन गो टिल योर ग्रेव. नेक्स्ट जन्म में भी आपके साथ रहेगा. बट
But sitting in an ego bubble is like constantly running, but on a treadmill. I don't want to run on a treadmill. You're not getting anywhere. I'm tired. हम जिस point पे है ना humanity पे, each one of us have lived at least 200 to 400 lifetimes so far. Imagine हमारे शास्त्र में लिखा है 7 जन्म होते हैं. हम लोग कितनी बार फेल हुए होंगे गौरव कि 7 के बदले 200 जन्म लेके बैठे. कितनी बार फेल हुए होंगे कि अभी तक 80 KT चल रहा है. हाँ. We don't इंजीनियरिंग में 80 KT learn होता था. our lessons. We just don't learn. पर काव्या, ये पता कैसे चलता है कि ईगो इज नाउ स्लाइडिंग इन? मतलब घर के अंदर कोई आता है तो दरवाजा खुलता है ना, तो पता चलता है कोई आ गया. पर ईगो का कैसे पता जिस चलता दिन आपकी लाइफ रुक गई ना, अटक गई, और आप सच में इवैल्यूएट करने को बैठोगे, यू विल रियलाइज दैट हाफ माय गेम इज ऑफ ईगो. और किस किस रूपों में नजर आती है ईगो? इज इट ऑलवेज कि आई एम बेटर देन यू? ओह, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. कौन सी गेम्स होती हैं? टोनी रॉबिन्स हैड गिवन दिस एग्जांपल कि पर्सनालिटीज के ना 4 बेसिक नीड्स होते हैं. वन इज सर्टेनिटी, कंट्रोल. वन इज अनसर्टेनिटी, वेराइटी, चेंज, एडवेंचर. वन इज लव एंड कनेक्शन, एंड वन इज सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड योर ईगो. मैं इंपॉर्टेंट, मैं कुछ, मेरा महत्व, मेरी जगह. अब एक इंसान, अगर आप गाड़ी में बैठे हो और कोई रास्ते में कोई रैंडम बंदा रास्ता क्रॉस कर रहा है, तो वो आपके लाइफ में कितना महत्व रखता है? कुछ भी नहीं. लेकिन अब इस बंदे के पास अगर एक गन है और गन आपके सर पे तानी हुई है, तो कितना महत्व रखता है? बहुत सारा. पूरा महत्व उसके पास. अब वही महत्व रखता है. बिल्कुल. जो लोग अच्छा काम करके अपना ईगो डेवलप नहीं कर सकते, हेल्दी ईगो जिसको बोलते हैं, वो लोग रिबेलियन, अग्रेशन, विक्टिमाइजेशन, कंट्रोल, ये सब यूज करके लोगों को कंट्रोल करते हैं. दैट इज योर ईगो. कभी कभी जो लोग बोलते हैं ना, हाय मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरी लाइफ तो ऐसी थी. विक्टिमाइजेशन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईगो. इट्स द फर्स्ट फॉर्म. वाओ. आई एम अ विक्टिम. देखो कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है, मेरे साथ कितना बुरा हुआ. सो अनकॉन्शियसली तुम्हें अटेंशन चाहिए. लुक एट मी, लुक एट मी. बिल्कुल. और जिस दिन तुम्हें वो अटेंशन नहीं मिलता, तुम्हें गुस्सा आता है और तुम्हें लगता है कि मेरे पास एक राइट है ये गुस्सा एक्सप्रेस करने का. और इस गुस्से को आप बढ़ाते जाते हो जब तक आप बीमार नहीं हो जाओ. वो बीमारी भी आपके ईगो ने दी है आपको, क्योंकि उस बीमारी के द्वारा आपको अब अटेंशन मिलेगा. Which is so psychosomatic in nature. Yes, but ego goes a long way. मेरा जो 4 साल का डिप्रेशन था गौरव, between 2002 and 2006, Yeah. तब मुझे लग रहा था it is because of my husband. आज जब मैं अवेयर हूं ना, तो मुझे समझ में आता है वो तो मेरी ईगो ने किया था. I manipulated it to get his attention. It was not his fault. I had all of these expectations कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब वो मुझे खुश करेगा, अब वो मुझे टाइम देगा, अब वो मुझे रानी के जैसे रखेगा. और अगर वो नहीं रख रहा है तो मैं बीमार होंगी, तो मैं रोऊंगी, तो मैं चिल्लाऊंगी, तो मैं चीखूंगी, तो मैं उसको बोलूंगी कि you're the worst husband on the planet. And then I believed that story. That is my ego. And that story led me to a depression. तब अगर मुझे कोई बोलता ना कि ये तेरा डिप्रेशन, ये तेरा ईगो है, तो मैं तो चाकू लेके उसका गला काट देती. So how did you come out of that? I got tired of my own bullshit. My husband gave me a gift, Gaurav. One day he told me, when I told him, I said, don't you see I'm so depressed? Don't you see I'm so lonely? Don't you see I've given up everything for you? One day he got fed up and he said, I never asked you to give up anything for me. And I don't know how to make you happy. I can't. And he left. उस दिन ना मेरे कुछ 6000 टुकड़े हो गए होंगे. मेरे ईगो के, मेरे बिलीफ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे. क्योंकि मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि
नहीं, जब तेरी शादी होगी ना उसके बाद तेरे पति के साथ ये करना, जब तेरी शादी होगी ना तब तेरा पति तुझे ये कराएगा, वो कराएगा, ये देखोगे, वो देखोगे। अब मेरा पति मुझे बोलता है आई डोंट नो हाउ टू मेक यू हैप्पी, आई डिडंट आस्क यू टू गिव अप एनीथिंग। दैट ब्रोक मी डाउन बट दैट वोक मी अप, बिकॉज आफ्टर 48 hours ऑफ क्राइंग आई एम लाइक भाई इसने तो डिक्लेयर कर दिया, अब क्या करूंगी मैं? अब Because the game that you were playing, is not working there anymore. was no other player to play with you. Absolutely. Now what? That day I had to wake up. And I still truly believe that was the biggest spiritual gift my husband gave me. Those 3 lines. I don't know how to make you happy. I didn't ask you to give up anything for me. Do what you can. And I'm leaving. He didn't leave. He just left the situation. Yeah. Then I said, oh shit, I have to take care of myself? How do I do that? ये तो मुझे पता ही नहीं है. It is not our partner's responsibility to make us happy. To complete us. And It's our own. we don't realize that very easily in our lives. Even if we realize it, we don't want to accept We it. don't want to accept. You know why? It's hard work. सबसे पहले तो क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है. दूसरा अपने फियर्स को फेस करना पड़ेगा कि हाय इसमें मैं फेल हो गई तो. तीसरा उस शेम को फेस करना पड़ेगा कि लोगों ने मुझे शेम किया तो, लोग मेरे पे हंसे तो, मैंने अगर इसमें से पैसा नहीं कमाया तो, अगर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को साथ नहीं दिया तो. And these are all the different forms of ego, what you're saying, Yes. right? Being victimized, being extra aggressive, blaming the other people, getting hurt Absolutely. with the same family, right? Absolutely. And till we don't break this ego bubble, till we are not ready to face life, till we are not ready to walk the talk, the same situations will keep happening. Somebody or the other will definitely come to disappoint you. If it's not your husband, it's your parent. If it's not your parent, it's your sibling. If it's not your sibling, it's your child, your boss, your co-worker, your best friend, your lover, anybody. It will And you said keep the way continuing. it shows up in your life is either तुम बीमार पड़ सकते हो, बिल्कुल, or you will be stuck in your life, बिल्कुल. right? You will continue to sit at the same place doing बिल्कुल. nothing. और या तो लोग आपको आके बोल के जाएंगे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विथ यू. जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे आपको. लेकिन अगर आप ईगो में बैठे हो तो आपको फिर भी लगेगा कि दूसरे लोग उनकी वजह से ये हो रहा है. उनकी वजह They से. don't know how to work. या बट यू आर नॉट गेटिंग द साइंस. You're not getting the signs. You're If you- still vibrating at that lower frequency. When you sit in a lower vibration frequency of your ego, your judgment, your anger, your victimization, you attract crisis. When you sit in a high vibration frequency of gratitude, of joy, of ecstasy, of blessings, of feeling good for others, of feeling content, you attract miracles. Is it the truth for everyone on earth? I mean, if you look at some political leaders or some industrialists or some businessmen who are so mean and who are only, I mean, if you look at when we talk about capitalistic world, these are the people who are only, they're only focusing on the kind of money and the wealth that they can generate and create for themselves. जी. तो उसका और इसका क्या कनेक्शन है? उस जगह पे तो मैं भी थी. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. मैंने बहुत सारे लाइफ टाइम्स में आई हैव बीन दैट पर्सन. देखो सोल्स के ना अलग अलग लेवल्स होते हैं. जैसे स्टूडेंट्स होते हैं और वो लोग जूनियर के जी, सीनियर के जी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर PhD तक जो एजुकेशन सिस्टम होता है, वैसे सोल्स का भी नए नए सोल्स हैं, बहुत पुराने सोल्स हैं, ओल्ड सोल जिसको हम कहते हैं. जो नए सोल्स है ना उनको पैसा, पावर, सब कुछ मेरा 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 चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको ये लॉटरी दोबारा लगेगी कि नहीं. ठीक है. सो दे वांट टू एक्सपीरियंस द जैज. So does it mean that all of us Yeah. in some birth Yeah. will experience that kind of recognition, Definitely. that kind of wealth, that kind of Definitely. fame? It is our choice. It's our choice. अब मुझे अगर पिक्चर देखनी है तो कितने जॉनर्स हैं. रोमांस है, थ्रिलर है, साई-फाई है, हिस्ट्री है, Classic है, क्लासिक art है, है. कितना है, राइट. अब मुझे गोलमाल अच्छी लगी, मैंने गोलमाल की 5 पिक्चरें देखी और गोलमाल 2 मैंने 36 बार देखी. ओके.
लेकिन अब मुझे गोलमाल अच्छी नहीं लग रही है, मुझे मर्डर मिस्ट्री देखनी है, मुझे उसमें से सीखना है, ये बंदा कैसे सोचता है, क्या करता है. आई विल चूज, मुझे क्या सीखना है, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी उसकी, मैं लोगों को चूज करूंगी कि कौन कौन इसमें पार्ट लेगा. और वही सोल्स जिनके साथ आपने बहुत सारी लाइफ टाइम्स बिताए हैं ना, उसमें से आप चूज करोगे यार गौरव तू इस टाइम आ जाना यार, मेरे को 30 की उम्र पे मिलना, और मेरा हार्ट ब्रेक हुआ होगा, फिर तू मिल जाना, फिर तू मेरा दोबारा हार्ट ब्रेक करना, क्योंकि मेरे को 4 हार्ट ब्रेक चाहिए, मैं तो D2 मैं तो समझती नहीं हूँ, तो 4 हार्ट ब्रेक हो जाएंगे ना तो मेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी. एंड यू विल टेल मी पागल है, पक्का है, ऐसी स्टोरी घटिया वाली, यानी हाँ मैं घटिया स्टोरी से ही सीखती हूँ. इट्स माई choice. So does it mean that everything that's happening in my life, I am manifesting it? We have already pre-written it. Right now, we are just saying the dialogues out. तो और डायलॉग्स भी हमने ही लिखे हैं, बाय द वे. तो अगर आपको आपके डायलॉग अच्छे नहीं लगते तो यू ब्लेम योरसेल्फ. अगर आपको जिस तरीके से आपकी लाइफ अच्छी नहीं लग रही है तो यू ब्लेम द स्क्रिप्ट राइटर, विच इज ऑल्सो यू. इट्स ऑल यू, इट्स ऑलवेज यू. एंड गेस व्हाट, यू कैन चेंज इट एट एनी टाइम. यू डोंट लाइक इट, यू कैन चेंज इट. आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगती, आप इंटरवल में उठ के चले जाओ, दूसरी पिक्चर देखो. गौरव, everything that is happening in life is a thought. It starts with a thought. It's only a thought, and a thought can be changed. It's only a thought, and a thought can be changed. And there's always, Kavyal, I'm just listening to your words again and again and again in my mind right now. मैं कहता हूँ फिर हमेशा हर बार एक कॉन्फ्लिक्ट जो आता है कि I can rewrite my thought. Yeah. And then there are underlying fears. Yeah. कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. तो उस द्वंद्व युद्ध में हम क्या करें कि हम अपनी इस थॉट को, अपनी इस इंटेंशन को इतना फोर्सफुल, इतना पावरफुल बना दें कि जो फियर्स हों दे शुड जस्ट कोलैप्स. बिकॉज कुछ देर पहले तुमने यू सेड समथिंग सो ब्यूटिफुल एंड इट रिमाइंडेड मी दैट in order to give birth to a new self, you have to kill a part of your own self. That's right. So how can I further strengthen my intentions so that all these underlying fears, the programming that I've been living with, they just lose their control? अगर हम ये recognize करें कि जो हमारे fears हैं वो हमारे लिए actually gift हैं. अगर fear नहीं होता ना तो ऐसे चलते चलते आग में घुस जाते, ऐसे चलते चलते 20 माले की बिल्डिंग से नीचे गिर जाते. वो जो फियर है वो भगवान ने दिया हुआ है कि अरे भाई संभाल के, बहुत प्रेशियस है जो तुमको लाइफ दी गई है. ऐसे बेवकूफी के जैसे चले जाओगे मर जाओगे. बी वॉचफुल. लेकिन हमने ये फियर्स को कोई अलग ही लेवल पे हम लोग लेके गए हैं. पहले जब हमारे पास फियर्स होते थे, क्योंकि हम लोग जंगलों में रहते थे, अगर फियर नहीं रहता तो कोई भी सांप काट जाता, मर गए, शेर खा गया, मर गए. आज ऐसा कोई थ्रेट नहीं है गौरव. आज थ्रेट सिर्फ हमारे ईगो को है. द थ्रेट टुडे इज ओनली टू आवर ईगो. मेरा बॉस मुझे ये बोल देगा, मेरे बच्चे मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे. देयर इज नो फिजिकल थ्रेट. और ऐसा किसी का स्टेट नहीं आता कि वो फियरलेस हो जाए. वी हैव टू लर्न टू लिव विथ फियर. This is so beautiful. We have to learn to live with our fear at any point in time. Kavyal, help me understand. You know, all of us, हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे grow कर रहे होते हैं. We learn something and then we implement in our life. Yeah. We learn something and we implement in our life. With everything that you are sharing with me, मतलब जो बताया, be it manifestation, be it clarity of thought, be very clear about कि मेरे को यही चाहिए यार, मुझे 1 मिनट नहीं चाहिए, मुझे 2 घंटे चाहिए. राइट. और व्हेन यू आर सेइंग कि यार जो मांगो दिल से मांगो, इंटेंशंस के अंदर पावर होनी चाहिए. पर कहीं ना कहीं किसी डायमेंशन में हमें लगता है कि आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट. एज ऑन टुडे, इज देयर एनी वन एरिया वेयर यू फील कि यार मेरे पास ना कुछ तो टूल की कमी है, क्योंकि मेरे सब कुछ मैंने अप्लाई करके देखा पर मेरे को इस सिचुएशन का आंसर नहीं मिल रहा. डू यू हैव समथिंग लाइक दैट in your life right now, where जितने भी अस्त्र हैं ना, अब लग रहा है किसी ब्रह्मास्त्र की जरूरत है.
मेरे पास तो 2 ही अस्त्र हैं बाकी के टूल्स तो मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ. हाँ. राइट नाउ आई एम ओनली ऑपरेटिंग फ्रॉम 2 टूल्स, लव एंड अवेयरनेस. बाकी के अस्त्र नहीं है मेरे पास. और कौन सी जवाब सिचुएशन में तुम्हें लग रहा है नहीं कि यार यू नीड समथिंग अपार्ट फ्रॉम लव एंड अवेयरनेस? जैसे जैसे सिचुएशंस बड़ी होती जाती हैं वैसे मैं सेम दुविधा में पड़ती हूँ जैसे दूसरे लोग पड़ते हैं. बट आई सी लाइफ नाउ एज अ ट्रेजर हंट. लाइफ हर एक पॉइंट पे आपके पास एक क्लू छोड़ता है. वो क्लू मिल गया आपको, चलो आगे बढ़ो. अब वापस आगे जाके आपको ढूंढना है. अब क्या मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ. आई एम 20% in my journey so far. 80% is left. I'm not saying I have all the tools. All I'm saying through everything that I do and say is love and awareness is enough to get you as far as I have got. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. बहुत बाकी है. और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो उस स्टेट पे हैं जहां पे मैं थी. तो वहां से यहां आने के लिए लव और अवेयरनेस enough. One major tool that I have discovered is consistency. Consistency is power. It's not brilliance. It's not excellence. It's not your intelligence. It's nothing. I was चलते a रहो. very below average student. और मुझे नेचर ने एक और गिफ्ट दी थी. नेचर did not leave me a choice. तो लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे मोनेटाइज करना नहीं आता. पता मैं इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऐसी ब्लेसिंग है कि तुमको एक्चुअली मोनेटाइज करने की जरूरत नहीं है. वाओ, टेल मी अगेन. अगर कोई आपको कहता है कि मेरे को मोनेटाइज करना नहीं आता, सो दैट मीन्स इसका मतलब नेचर ने आपको एक गिफ्ट दी है कि आप फाइनेंशियली ना सिक्योर हो कहीं ना कहीं. आपके पास क्योंकि कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए आपके पेट में आग नहीं लगी कि इसको मैं मोनेटाइज करूं वरना मैं मर जाऊंगी. नेचर डिड नॉट लीव मी दैट चॉइस. मुझ में आग लगी थी, अरे मैं मोनेटाइज नहीं करूंगी तो मर जाऊंगी. क्योंकि वो आग लगी थी ना, बिकॉज इट डिड नॉट गिव मी दैट चॉइस. आई लर्न टू मोनेटाइज एवरीथिंग. आज मैं बोलने का भी पैसा लेती हूँ, मैं चुप रहने का भी पैसा लेती हूँ. and that brings me to the next question, Kavya. You know, you have been able to bring in, you have been able to integrate is the right word, spirituality. You have been able to integrate therapy. You have been able to integrate the coaching part as well. हम बहुत ही बढ़िया तरीके से you have been able to integrate. Right? ये कैसे किया? मतलब how do you bring all these modalities together? Again, the gift that nature gave me, it gave me below average intelligence. कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, तो उसके पास बहुत कम चॉइसेस होते हैं. उसको या तो इंजीनियरिंग, या तो नासा, या तो डॉक्टर, या तो सीए, ऐसा कुछ बनना पड़ता है. जो बिलो एवरेज बंदा होता है ना, उसको भगवान सिर्फ क्यूरियोसिटी देता है कि जा तू कर अपना जुगाड़. अब मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी. What a beautiful perspective it is. और क्योंकि मेरे पास नहीं थे टूल्स, मुझे अपनी लाइफ चलानी ही थी, तो मैं हर जगह हाथ मार रही थी. हर जगह यार कुछ तो चल जाए, कुछ तो कुछ भी चल जाए. हाँ, कुछ तो चलेगा. और जो भी जहां पे भी मैं हाथ मार रही थी ना, सब कुछ चल रहा था. 20%, 25%, 30% सब कुछ चल रहा था. तो वो जुगाड़ में मेरे पास इतने सारे टूल्स आ गए. अब वो इतने सारे मसाले हैं, जितने मसाले हैं उतनी स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकती हूँ मैं. उतना बढ़िया you can serve. I just put it all together. You know, as I told you, Kavya, कि यार you are definitely one of the most celebrated, as you call it, the spiritual therapist today that we have in the country. And one of the issues that people often talk about is this mental wellness, mental health. What is that? I mean, help me understand. If you were to, let's assume if you were to put it in one sentence, so how would you describe that? What is that? And why is it important for us to understand the importance of mental well-being? Life is complicated now. And life will get further complicated as we evolve. The only superpower we have is this. और जितनी लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है उतना कॉम्प्लेक्स तरीके से ये चलता है. जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो मेंटल हेल्थ की बैंड बजाएगा. क्योंकि अब आप अपने थॉट्स में से ही बाहर नहीं आते. मेंटल हेल्थ तब तक ठीक था
जब तक दुनिया में इतनी लोनलीनेस नहीं थी, दिवाली पे अभी भी एक दूसरे के घर जाते थे, होली में मिलते थे, विश करते थे। आज सब कुछ मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरा मोबाइल फोन। जितने आप अकेले हो जाते हैं उतनी आपकी मेंटल हेल्थ को चोट पहुंचती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को एक थेरेपिस्ट ही चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं तो एक गुरु ढूंढिए, अगर आप इंटेलेक्चुअल इंसान हैं तो पॉडकास्ट ढूंढिए, अगर आप फिजिकल इंसान हैं तो जिम, योगा, वर्कआउट ढूंढिए, अगर आप सोशल इंसान हैं तो अपने फ्रेंड्स ढूंढिए। हर एक चीज़ काम करेगी, लेकिन अगर ये है तो सब कुछ है। अगर मेंटल हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। और मेंटल हेल्थ की तकलीफ टुडे हैज़ बिकम लाइक कॉमन कोल्ड। लोगों को डिप्रेशन से ज़्यादा एंजाइटी, एंजाइटी से ज़्यादा इम्पेशेंस, इम्पेशेंस से ज़्यादा लैक ऑफ फेथ इन themselves and lack of faith in the world. That somebody is taking care of me. जैसे you said something so precious for me कि अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं लगी हुई पैसा कमाने की, so because deep down you know it that you are taken care of. And as you're just mentioning right now कि have faith in something because you know deep down somebody is taking care of you. मैं आपको एक चीज बताती हूँ फेथ के बारे में। मैं बहुत बात करती हूँ फेथ के बारे में। आई बिलीव दैट फेथ इज माई सुपर पावर। TED talk as well. आई गिव अ TED talk, द स्टोरी ऑफ फेथ। मैं इस बार महाकुंभ जाने वाली थी। 15 साल से मेरे बुक में लिखा है कि मुझे महाकुंभ जाना है, मुझे महाकुंभ एक्सपीरियंस करना है। लेकिन 15 साल के पहले ना इतना महाकुंभ का शोशा नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। इस बार सोशल मीडिया बोलो, उसका कैंपेनिंग बोलो, 1/3 of the country has gone to the महाकुंभ। तो जब तक मैं जाने वाली थी तब तक स्टैम्पीड हो चुके थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके थे, आग लग चुकी थी, लोग परेशान हो चुके थे, बहुत कुछ हो चुका था। तो मैं भगवान से कंप्लेन कर रही थी कि यार मैंने इतने साल वेट किया तेरे पास आने के लिए, और जिस साल मैं आ रही हूँ उसी साल इतना सियापा। That couldn't you have made it easier for me? Did you hold that plaque as well for the god? No, now इतना स्यापा 15 साल के बाद। तो मैं जाने के पहले बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। I was almost going, not going, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीफ बैठी है कि जब भगवान बुलाता है ना तो मना नहीं करते। प्लान ऑलरेडी बना हुआ था, टिकट्स ऑलरेडी बुक थे, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ आ रहे थे। And one of my friends, she kept telling me, she's saying, no, I've got it all organized, don't worry. I said, यार तूने कितना भी ऑर्गेनाइज क्यों ना किया हो, 300 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम दिखा रहे हैं वो लोग, 15-15 घंटे तक लोग अटके पड़े हैं, हम लोग वहाँ पे अटक जाएंगे तो हमारी अरेंजमेंट्स क्या, ऊपर थोड़ी हेलीकॉप्टर आके हमको लेके जाएगा। आई हैड अ लॉट ऑफ, मैं एंटी एंग्जाइटी की मेडिसिन लेके गई थी कि मैं ज़्यादा एंग्शियस हो गई तो, मैं अगर मर गई तो, मैं वापस नहीं आई तो, आई हैड ऑल ऑफ दीज थॉट्स। वो जो एक्सपीरियंस था महाकुंभ का, ऐसा लगा जैसे सारे chaos में शिवा laid out a red carpet for me and he said, ये ले, ये तेरे लिए, तू आजा। 15 साल मुझे ना 1 मिनट का कहीं ट्रैफिक जैम मिला, मुझे ना डुबकी लगाने में कोई तकलीफ हुई। मैं 3 दिन पौना घंटा, 1 घंटा उस पानी में बैठी हूँ। और जब मैं पानी में बैठी हूँ गौरव, मैं रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ भगवान को सॉरी बोल के, सॉरी यार, I doubted you, yes. सॉरी। मेरा फेथ हिल गया। मुझे भरोसा रखना चाहिए था, प्लीज फॉरगिव मी। क्योंकि जो मुझे ट्रीटमेंट मिली है वहां पे, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक दिस। कि ऐसा कैसे कि मेरे आसपास करोड़ों लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं। आई हैव एक्चुअली sat in the water and cried for forgiveness. कि एक इंसान जिसके पास इतना फेथ है ना, वो भी कभी कभी डगमगा जाता है। सॉरी यार, माफ कर दे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। You know, as I'm listening to you, Kavyal, I could sense a shift in your voice and that glitter of water in your eyes. Yeah. If these tears could communicate to you right now, Yeah. what would they tell you? If my tears could talk to me right now, they would tell me that you've come a long way. And that
some part of me is telling me that I'm proud of you. You didn't give up. You were crazy, you were stupid sometimes. But that's why you have what you have. You didn't give up. And that's the only thing I tell people also. तुम limited हो, तुम faulty हो, तुम कच्चे हो, तुमको कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम जैसे भी टूटे फूटे हो ना, show up for yourself every day. Show up for yourself. Just show up up. for yourself. That showing up creates magic. Oprah, January 2012 से आज तक मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली. And छुट्टी doesn't mean that I go to office every day. छुट्टी means I show up in being the best version of myself. Every day. Every day. And it's not about the work that you're talking about. It could be anything. It could be taking care of one of your family members. It could be दोस्तों के साथ कॉफी पीना. You have been fully present. ओपरा ने मुझे एक बात सिखाई. जब उसकी मेरे से बात हुई तो she said, what do you want? और मैंने उसे बोला, I want to work with you. And she said, come. And I'm like, what? She said, come. I can't. तो हंसने लगी. उसने मुझे बोला कि you asked for something. You got it. But you were not prepared to keep it. You were not ready to receive it. Now prepare yourself. कि जब ये opportunity वापस आएगी तुम्हारे पास, you should be prepared and you should be willing prepared to receive it. I am still preparing every day. Is it still your dream? Maybe, maybe not. I don't know. I don't know what I would say today if Oprah says, come work with me. Maybe I'm waiting for Sadhguru to say, come work with me. Wow. But I show up. And nobody can challenge that I have been my most authentic, besharam self. Throughout this journey. Throughout. That's all I've done every day.